Welcome to Dose with Grace. I hope you're doing well and taking very good care of yourself. Today, I want to start something very special with you because this is a very auspicious month, Purushottam Mas, but this is also my birthday month. So I want to give something which is something so sacred, like the deep secrets of spirituality, but from someone who has both the knowledge and the self realization or self actualization. But before I do that, you can see something next to me. This is a beautiful artifact, hand painted, handmade, conceptualized, and gifted to me by my wonderful children. Maybe this was on my 45th birthday, gifted to me by my children, and as a wonderful and a very beautiful reminder of staying on my path, um, despite um, despite many moments of motivation not running through or different life happening. So therefore I think it is I before I start this new journey with you, I want to also dedicate this journey to my children, because children are the probably the most purest and the most loving representation of what truly curiosity at its purest looks like in life. Children ask us questions that make us ponder. Many people say that whatever you know, if you cannot explain it to a 3-year-old or a 5-year-old child, then you actually really don't know it. The way children ask questions, they are very open hearted, like a sponge, they can learn, and they evolve with every passing day so beautifully until they become adults and become so conditioned mind that they stop asking questions. They work on a very mechanical level, like us. So here's to invoking that child of curiosity in you, in asking questions, because truly the learning, the growing, and staying young stays only comes from being able to continuously, relentlessly, and very magically be in touch with that growing child in you who is always curious to ask questions, who's observing and learning and asking until they become fully aware, fully conscious, and self actualized. This is truly what we learn and see among all the saints and the rishis and the gurus that we are blessed to have in India, in our history and even in present. So in one of my pilgrimages, I have been really blessed to visit one of my dream bookstores, a bookstore that is not a usual bookstore which stores just stories and writers from all over the world, but it has very sacred collection of the most hidden secrets of the greatest saints of India and Bhagwan Sri Vishnu himself. This is a bookstore that whenever you visit India, you must pay a visit. However, today I'm going to show you my pick, and this is the pick that we will work with together. It's called Prashnottar Manimala. It's a book of questions and answers, but not your regular questions. These are very, very beautiful secrets, questions which are just like ocean of confusions, myths,
stereotypes, difficulties, curiosity, or misconceptions. And from that, Swami Ram Sukdas ji, through his answers, has pulled out pearls of wisdom. In this book, we will find the pearls of wisdom and nicely put together in a string to make it a pearl necklace, which is what we can find in our own life too. From millions of billions of thoughts which are relentlessly going on in our mind, millions and billions of things to look at, see, but from that pulling out what is relevant and getting them answered to finally come to what is really worth, that pearls, those pearls of your life. Put them together in the string of knowledge and keep them as a wonderful necklace, which is the complete understanding of your life. So this is the book. It's a representation of a swan, a soul that is looking to evolve, and this is the representation of the world, Bhav Sagar, and the pearls of wisdom. And these are from Gita Press, and Swami Ram Sukdas is one of the greatest saints of our olden times, and his Vani is in these questions and answers. So today we will not start with the questions and answer, but we'll start with the epilogue, the first page, what shows us what questioning and looking for answers can actually do in our self-development and in our growth in life. So this whole series will be in pure Hindi. I don't want to take away or dilute from what as it is, this book will be presented in small videos, and therefore this whole thing will be in pure Hindi. So enjoy the truth as it is. प्रश्नोत्तर की परंपरा सृष्टि के आरंभ से ही चली आ रही है। सृष्टि के आदि काल में जब ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए तो उनके भीतर भी सर्वप्रथम यह प्रश्न प्रस्फुटित हुआ, इस कमल की कर्णिका पर बैठा हुआ मैं कौन हूं? यह कमल भी बिना किसी अन्य आधार के जल में कहां से उत्पन्न हुआ? मैं कौन हूं और ये क्या है? इसे सृष्टि का आदि प्रश्न कहें तो अयुक्ति नहीं होगी। प्रबुद्ध जिज्ञासुओं के प्रश्न के उत्तर में अब तक ना जाने कितने ग्रंथों की रचना हो चुकी है। जगन माता पार्वती के प्रश्न और आशुतोष भगवान कृष्ण के उत्तर के फलस्वरूप जगत में विविध लौकिक एवं अलौकिक विद्याओं का प्राकट्य हुआ है। विविध शास्त्रों की रचना हुई है। शौनक आदि ऋषियों के प्रश्न और सूत जी के उत्तर से 18 पुराण बने हैं। कनोपनिषद और प्रश्नोपनिषद, ये दो उपनिषदों की रचना प्रश्नों को लेकर ही हुई है। श्रीमद् शंकराचार्य जी के द्वारा रचित प्रश्नोत्तरी प्रसिद्ध ही है। सामान्यतः बाल्य अवस्था से ही बालक के जिज्ञासु हृदय में प्रश्न प्रस्फुटित होने लगते हैं, परंतु जब मनुष्य पारमार्थिक पग पर आगे चलने लगता है तब उसके भीतर प्रश्नों का एक विशेष सिलसिला शुरू हो जाता है और वह ढूंढने लगता है किसी ऐसे संत को या गुरु को जो उसके प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उसका सही मार्गदर्शन कर सकें। भगवान ने गीता में भी कहा है,
तदति प्राणिपातेन परिप्रश्नेन सेवया उपदेशयन्ति ते ज्ञानाः ज्ञानीन सत् तत्वदर्शिनः। उस तत्व ज्ञान को तत्वदर्शी ज्ञानी महापुरुषों के पास जाकर समझ, उनको साष्टांग दंडवत कर प्रणाम करके उनकी सेवा करने से और सरलता पूर्वक प्रश्न करने से वह तत्व ज्ञानी महापुरुष तुझे उस तत्व ज्ञान का उपदेश करेंगे। ज्ञानीन तत्व दर्शिनः कहने का तात्पर्य ये है कि साधक के प्रश्नों का समुचित उत्तर वही महापुरुष दे सकता है जिसे शास्त्रों का भी ज्ञान हो और तत्व का भी अनुभव हो। कारण कि केवल शास्त्र ज्ञान हो और तत्व का अनुभव ना हो तो उसकी बातें वैसी ठोस नहीं होंगी जिससे साधक को बोध हो जाए। अगर तत्व का अनुभव हो पर शास्त्र ज्ञान ना हो तो वह साधक की विविध शंकाओं का सप्रमाण समाधान नहीं कर पाएगा, परंतु ऐसा महापुरुष बहुत दुर्लभ होता है। इसीलिए अखिल सौंदर्य माधुर्य सामृत सिंधु भगवान श्री कृष्ण युधिष्ठिर को ये कहकर भीष्म पितामह के पास ले गए कि ज्ञान का सूर्य अस्त हो चला है, अर्थात पितामह अपना शरीर छोड़कर जाने की तैयारी में हैं, इसलिए तुम्हें कोई बात अगर पूछनी हो तो शीघ्र ही पूछ लो। साधन मार्ग में प्रश्नोत्तर का बहुत महत्व है। बिना प्रश्न किए कोई भी बात साधक को मिलती है तो उस पर उसका कोई विशेष ध्यान नहीं जाता, पर जब साधक स्वयं प्रश्न करता है तब उसके उत्तर में जो बात मिलती है वह साधक के हृदय में बैठ जाती है। कठिन से कठिन आध्यात्मिक विषय भी प्रश्नोत्तर के द्वारा सरल हो जाता है। कोई सच्चा जिज्ञासु हो तो उसके द्वारा प्रश्न करने पर संतों के हृदय में नए नए विश्लेषण भाव प्रकट होने लगते हैं। वे भाव केवल प्रश्नकर्ता के लिए ही नहीं परंतु संसार मात्र के लिए हितकारक होते हैं। जब तक साधक की दृष्टि में अन्य या जगत की सत्ता रहती है तब तक उसके भीतर प्रश्नों की श्रृंखला चलती रहती है। कारण कि अन्य सत्ता को मानकर ही प्रश्नोत्तर अथवा शंका समाधान होता है। जब उसकी दृष्टि में एक चिन्मय सत्ता के सिवा कुछ भी नहीं रह जाता तब उसके सब प्रश्न संपूर्ण रूप से शांत हो जाते हैं। उस परमात्म तत्व की ओर दृष्टि जाते ही हृदय की ग्रंथियां टूट जाती हैं, सब संशय मिट जाते हैं और संपूर्ण कर्म नष्ट हो जाते हैं। वास्तविक तत्व वर्णातीत है, वहां मन बुद्धि वाणी पहुंच ही नहीं सकती। इसलिए सबका सब वर्णन प्रश्नोत्तर आदि प्रकृति में ही होता है और शास्त्र शाखा चंद्र न्याय से परमात्म तत्व का संकेत मात्र होता है। वर्ण से बोध नहीं होता, प्रत्युत पढ़ाई होती है। जहाँ वर्ण है वहाँ तत्व नहीं है, जहाँ तत्व है वहाँ वर्ण नहीं है, वर्णन नहीं है। वर्णन से बोध नहीं होता, प्रत्युत पढ़ाई होती है। वर्णन मीन्स एक्सप्लेनेशन। जहाँ वर्णन है और डेफिनेशन, जहाँ वर्णन है वहाँ तत्व नहीं है और जहाँ तत्व है वहाँ वर्णन नहीं है। जो वर्णन में ही उलझे रहते हैं उन मनुष्यों को तत्व नहीं मिलता। ऐसे मनुष्य वाचिक ज्ञानी होते हैं, परंतु जो सच्चे जिज्ञासु वर्णन में ना उलझकर उसके लक्ष्य यानी तत्व की ओर दृष्टि रखते हैं उन्हें वर्णातीत तत्व मिल जाता है। प्रत्येक साधक में अपने प्रश्नों का उत्तर पाने की विशेष भूख रहती है। साधन करे पर कोई प्रश्न उत्पन्न ना हो ये असंभव है। इसलिए जब साधक को कोई अच्छा संतोषजनक उत्तर देने वाला मिल जाता है
तब वह बहुत उत्साहित हो जाता है। श्रीमद् भागवत में कहा आया है, जब उद्धव जी ने देखा कि शराशरातीत भगवान श्री कृष्ण मेरे प्रश्नों का उत्तर बड़े विलक्षण ढंग से देते हैं, तब उन्होंने प्रश्नों की झड़ी लगा दी और एक साथ 35 प्रश्न कर डाले। इसी तरह की बात हमारे परम श्रद्धास्पद श्री स्वामी जी महाराज के विषय में भी देखने में आती है। आप अपने प्रवचनों में विविध प्रश्नों के उत्तर इतनी विलक्षण रीति से देते हैं कि श्रोतागण उत्साहित होकर प्रश्नों की झड़ी लगा देते हैं। प्रवचन का समय समाप्त हो जाता है, पर श्रोताओं की ओर से प्रश्न आने समाप्त ही नहीं होते। इसका कारण ये है कि आप प्रश्नों का उत्तर सिद्धांत की दृष्टि से ना देकर प्रश्नकर्ता के भावों की दृष्टि से देते हैं। इसीलिए आपकी बात पठित अपठित प्रत्येक प्रश्नकर्ता को सहज ही हृदयंगम हो जाती है। आप प्रत्येक प्रश्नकर्ता को, चाहे वह किसी भी विषय में कैसा ही प्रश्न क्यों ना करे, अपनी उत्तर से संतुष्ट कर देते हैं। आपने लगभग 19 वर्ष की अवस्था से ही भाग्यवत विचारों का प्रचार करना तथा साधकों की शंकाओं का समाधान करना आरंभ कर दिया था, और अब 96 वर्ष की अवस्था पार करने पर भी उसी उत्साह से जगह जगह जाकर अपने प्रवचनों में साधकों का विविध प्रश्नों का उत्तर देकर उनका पथ प्रदर्शन कर रहे हैं। परम श्रेय श्री स्वामी जी महाराज से मैं अनेक वर्षों से समय समय पर विविध प्रश्न करता आया हूँ। लगभग 20 वर्षों से डायरी में लिपिबद्ध किए हुए उन प्रश्नोत्तरों में से सर्वोपरि 500 प्रश्न चुनकर ये प्रश्नोत्तर मणिमाला पुस्तक तैयार की गई है। इसमें कुछ ऐसे प्रश्न भी हैं जो अन्य व्यक्तियों के हैं और उपयोगी समझकर इसमें दिए गए हैं। पाठकों की सुविधा के लिए प्रश्नों को विषय अनुसार वर्णानुक्रम से विभाजित किया गया है। परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज की अन्य ऐसी कई पुस्तकें गीता प्रेस से प्रकाशित हुई हैं जो प्रश्नोत्तर रूप से लिखी गई हैं, जैसे गृहस्थ में कैसे रहें, हम ईश्वर को क्यों माने, सच्चा गुरु कौन है, नाम जप की महिमा, मूर्ति पूजा, दुर्गति से बचो, संतान का कर्तव्य, आहार शुद्धि आदि। पाठकों को इन पुस्तकों का भी अवश्य में अध्ययन करना चाहिए। पाठकों से विनम्र निवेदन है कि वे इस पुस्तक में आई श्रेष्ठ बातों को परम श्रद्धेय श्री स्वामी जी महाराज का कृपा प्रसाद मानकर अपने जीवन में धारण करें और त्रुटियों को मेरी व्यक्तिगत भूल समझकर कृपा को पूर्वक क्षमा करें। संतों की उत्कृष्ट उत्पत्ति है मेरी बानी, जानूं उसका भेद भला क्या, मैं अज्ञानी। श्री रामन वमी, निवेदक राजेंद्र कुमार। So this is the book that I will be starting the series with. It has a lot of topics, just to name a few. अर्पण, अवतार, अहम, आनंद, कर्तव्य कर्म, कलयुग, कामना, गीता, चुप साधन, जीवन मुक्त, तत्व ज्ञान, दान, दोष, धर्म, नाम जप, परहित, पाप पुण्य, प्रार्थना, प्राण, प्रारब्ध, प्रेम, भक्ति, भगवान, भगवत कृपा, भगवत दर्शन, भगवत प्राप्ति, मनुष्य जन्म, मुक्ति, मृत्यु, वासुदेव सर्वम, विवेक, संकल्प, संत महात्मा, संसार, सत्संग, साधक, साधन, सुख दुख, सुखासक्ति, सेवा, सृष्टि रचना, स्वरूप, समाज सुधार और प्रकीर्णन और अंतत योग. So I hope we will enjoy this journey together. I'm really grateful and blessed to take this opportunity to present to you this
but it will be purely in Hindi because as you can see, and I don't want to dilute what has been said here by adding my own um, interpretation to it or translation to it. So I hope you will enjoy this journey. I have really found this book extremely important for us to read and go back to again and again and again. So we will do it chapter wise, maybe 10 questions only, and we'll see how it goes. So until then, happy Purushottam Mass to all of you. Take care of yourself and see you soon with the next video. Bye bye.